In this video, we are going to discuss the differentiation of the implicit function. We have in the previous lectures, we have talked about the differentiation of the logarithmic function and also the functions where you have to take the log before differentiation. So for this, what is an implicit function? Usually whenever there is a relation between x and y, you can express them separately. Like x can be expressed in terms of y can be expressed in terms of x. That is, they are called explicit function. But when we cannot do it, you will call it implicit function. Look at the example. Y equals sin x plus log x plus x cube is an explicit function because you can explain y, you can get the value of y. But the other function which I have written, x square y cube plus x square plus xy equal to 0, you cannot find the value of y alone. So that's why this is an implicit function. It is a just normal differentiation, nothing specific, but always remember, usually we are differentiating with respect to x. So derivative of x with respect to x is 1, derivative of y with respect to x is dy by dx, not 1. That's the difference because we are taking the differentiation with respect to x only. It will be clear from the next example. Let's see. We have got x cube plus y x square plus xy square is equal to 25. We will differentiate straight away. Derivative of x cube is 3x square. Y x square का derivative आप देखिए, y into x square is the product rule. So we'll take the product rule. X square into y का derivative plus y into x square का derivative plus x into y square का derivative plus y square into x का derivative. ये सारी वैल्यूज रख दी गई हैं. सारा dy by dx एक तरफ ले आइए और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दीजिए. दिस इज व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. कुछ भी नई चीज नहीं है इसमें, ध्यान दीजिएगा, कोई खास चीज नहीं है, लेकिन हाँ सिर्फ y का डेरिवेटिव dy by dx हो जाता है. अगला क्वेश्चन देखिए, sin x प्लस sin y tan xy. अब देखिए sin x का डेरिवेटिव cos x, sin y का cos y इंटू dy by dx, क्योंकि cos y के बाद एक y बच जाता है. tan xy का sec square xy, उसके बाद x इंटू y का डेरिवेटिव विच इज द प्रोडक्ट रूल और विल यूज द y प्लस x dy by dx. सारा dy by dx एक तरफ ले आइए, वैल्यू पुट अप कर दीजिए एंड वी गेट द फाइनल आंसर. dy by dx इज y sec square xy माइनस cos x अपॉन cos y माइनस x sec square xy. कोई खास चीज नहीं है, सिंपल आपने dy by dx लेना है. सिर्फ माइंड में रखना है कि x का डेरिवेटिव 1 है और y का डेरिवेटिव dy by dx है. आइए एक और क्वेश्चन आपके सामने है. इफ cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y, प्रूव दैट dy by dx cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a. देखिए इसको मैं दो तरीकों से करके आपको बताता हूं, बिकॉज फर्स्ट मेथड इज यूजुअल मेथड. फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इसको पहले सोच लेंगे तो निकालना आसान हो जाएगा. आइए देखिए, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया. cos y का डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, माइनस sin y dy by dx, और x इंटू कॉस ए प्लस वाई में मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है, cos a प्लस वाई एज इट इज, उसके बाद x एज इट इज एट cos a प्लस वाई का डेरिवेटिव विच इज sin a प्लस वाई टू dy by dx. अगेन सारा dy by dx एक तरफ ले आए. अब देखिए डिनोमिनेटर में मेरे पास एक x एक्स्ट्रा है. क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखिए dy by dx जो मुझे प्रूव करना है उसमें x नहीं है, सो विल हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x एलिमिनेटेड. हाउ डू वी डू इट? वी पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन. फर्स्ट एक्सप्रेशन देखिए क्या है, यहां पर आएगा x क्या है, cos y डिवाइड बाय cos a प्लस y. ये पूरी वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी. x की जगह ये वाला x था, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया. cos a प्लस y ऊपर चला जाएगा, cos y sin a प्लस y माइनस sin y cos a प्लस y, ये नीचे रह जाएगा. अब ये क्या है, sin a cos b माइनस cos a sin b. ध्यान से देखिएगा, sin a cos b माइनस cos a sin b आ जाएगा और फिर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे. वैल्यू पुट कर दिया आपने, cos स्क्वायर a प्लस y sin a कर दिया. ये हमारे पास एक आंसर आ गया dy by dx से प्रूफ का. अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से देखिए जरा, बिल्कुल डिफरेंट मेथड है लेकिन कोई खास नहीं है वही. x इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस y. देखिए मुझे निकालना था. अब देखिए ये मेथड में मैं कैसे पहुंचा. मैंने क्वेश्चन को देखा, मुझे पता लगा dy by dx निकालना है और वैल्यू में cos स्क्वायर a प्लस y है. इसका मतलब डिफरेंशिएशन में कहीं पर cos का स्क्वायर तब आएगा अगर डिनोमिनेटर में cos a प्लस y हो जाता अगर dx by dy करें. तो जैसे मैंने x को लिया, इसका
वैल्यू एक्स की आ गई cos y अपॉन cos a प्लस वाई। इसको आप जरा सा ध्यान से देखें, जैसे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y किया जाएगा, dx बाय dy किया जाएगा, माइंड यू इट इज dx बाय dy, तो आपके पास नीचे cos स्क्वायर a प्लस वाई आ जाएगा। यही सोच करके इसको मैंने इस फॉर्म में कर दिया, सिंपल dx बाय dy ले लिया और डिवीजन रूल लगा दिया, cos a प्लस वाई माइनस साइन वाई माइनस cos y इंटू माइनस ऑफ साइन a प्लस वाई। ये ऊपर वाली क्वांटिटी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम करेंगे, ये आ जाएगी cos y साइन a प्लस वाई माइनस साइन y cos a प्लस वाई। अगेन ये साइन a cos b माइनस cos a साइन b आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई थोड़ा सा और करेंगे तो मेरे पास साइन a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई आ जाएगा। अब ये क्या है, ये अभी dx बाय dy है, इसको इन्वर्स करते ही आप cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a आ जाता है। तो ये एक दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं उसको, पहला तरीके का पहले समझ चुके हैं। दीज आर द टू मेथड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपके पास आप देख सकते हैं एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप स्ट्रेट वे डिफरेंशिएशन शुरू कर देंगे हम। देखिए log x स्क्वायर प्लस वाई का मेरे पास आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2x प्लस 2y dy बाई dx। अब रह गया 2 tan इनवर्स y बाय x का। आपको पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, मैंने वो कर दिया। उसके बाद y बाय x का फिर रह जाएगा चेन रूल की तरह, उसको x dy बाई dx माइनस 1 इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर कर दिया। सिंप्लीफाई करते हुए सारा मैं टर्म एक तरफ कर दिया, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x प्लस 2y dy बाई dx, और इसको राइट साइड को सिंप्लीफाई करके मैं आपके सामने वैल्यू पुट कर दी। इस वैल्यू में 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर एक्स dy बाई dx माइनस वाई। अब ध्यान दीजिएगा, इस वाले पूरे में मेरे पास दोनों साइड में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, तो उसको मैं काट दूंगा। याद रखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉन जीरो, हेंस आई कैन कट इट डाउन। यू कैन सी दिस वी हैव रिड्यूस्ड इट। अब राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों में 2 भी कॉमन लिया जा सकता है, मैंने उसको भी एलिमिनेट कर दिया और बाकी सारे dy बाई dx के टर्म्स को एक तरफ ले आए, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी बस। x प्लस वाई dy बाई dx इक्वल टू x इंटू dy बाई dx माइनस वाई, सब dy बाई dx एक तरफ ले आइए और उसके बाद dy बाई dx की वैल्यू निकाल दीजिए। आपके पास स्ट्रेट वे प्रूफ जो करना है वो आ गया। कुछ भी सेपरेट या एक्स्ट्रा करने की आपको जरूरत नहीं है, आराम से लेके चलिए। सिर्फ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर dy बाई dx, वाई स्क्वायर 2y dy बाई dx, मतलब एक y का डेरिवेटिव dy बाई dx आपके माइंड में रहना चाहिए। तो इसके बेस पर सारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना है। अब इसमें देखिए dy बाई dx निकाल के आपके पास आंसर में x है, डिफरेंशिएशन के बाद आंसर में x है। इसका मतलब मुझे कभी ना कभी y को ऐसा बनाना है कि y आ जाए विदाउट x, सॉरी विदाउट y, x उसमें रह जाए। इसको अगर हम नॉर्मल तरीके से करने लगे तो बहुत लेंदी पड़ता है, घूम फिर के बहुत लेंदी पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन आता है। सिंप्लीफाइड तरीका देखिए, हमने कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा साइड चेंज करके स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स को, x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स को एक टर्म को राइट साइड पे ले गए और उसको स्क्वायर कर दिया। इस टर्म को राइट साइड पे लेके स्क्वायर कर दिया। स्क्वायरिंग के बाद वैल्यू आ गई। हमने फैक्टराइजेशन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक तरफ कर लिया, वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक तरफ कर दिया। थोड़ा सा इसमें गेम खेला है, इधर उधर प्लस माइनस करके। दोनों साइड अब x माइनस वाई और y माइनस एक्स है, उसको हम काट सकते हैं बिकॉज y इक्वल टू एक्स नहीं है। अगर y इक्वल टू एक्स होता तो ऊपर वाली क्वांटिटी जीरो नहीं आती, दो क्वांटिटीज का सम जीरो नहीं हो सकता पॉजिटिव क्वांटिटीज का, इसलिए हमने इसको एलिमिनेट कर दिया और वैल्यू लिखा दी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 है। तो y की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। इसको जब आपने यूज किया तो आपके पास अब y की वैल्यू माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स आ चुकी है। अब देखिए, अब डिफरेंशिएट अगर आप y को करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि राइट साइड पे सिर्फ x रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही देखना होता है आपको करना क्या है। आप राइट साइड में देखिए, हमारे पास सिर्फ x था, y नहीं था, मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया और इस क्वेश्चन को कर दिया। ये टिपिकल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ध्यान दीजिएगा इस पर। फॉर मोर सच वीडियोज यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए, जेई नीट के लिए, क्लास 11-12 के लिए आप मेरे पास 24 ईयर्स एक्सपीरियंस की आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वीडियोज। अगर आप मेरे कोर्स को जाना चाहते हैं उसको आप देख सकते हैं, मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज कांटेक्ट मी। आई होप दिस वीडियो हैज बेनिफिटेड यू फॉर इम्प्लिसिट फंक्शंस। नेक्स्ट video to come for other type of questions, that is a parametric also. Thank you.